تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو دن کی ریلی نکال کے بس کر کے آپ اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوا سکتے اسکولوں کو فیمیل اسکولوں کے ساتھ مدغم کر کو اسکول دیے جا رہے ہیں، آپ سڑکیں بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، حکومت آپ کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکالنے کی دھمکی اور دے پھر رہی اس ہے؟ کا بچہ پرائمری سطح سے ہی تعلیم حاصل نہیں کر مکمل سکے گا۔ ہڑتال کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے۔ والے چند سالوں میں ہمارے ملک میں خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اس طرح کو مول لینا چاہتے بات نہیں کرتے کہ فارم 45 کیا ہر 47 ہے، مہینے کا لے کر کون سا ٹیچر ہے جو معیاری تعلیم دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابی رحمان، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ضلع ناروال میں، جہاں 13,000 سکول نجکاری کے خلاف اساتذہ جو ہیں وہ پروٹیسٹ پہ ہیں، احتجاج پہ ہیں۔ اساتذہ کو کیا خدشات ہیں؟ کیا ان کو نوکری سے نکالے جانے کا خدشہ ہے یا کیا خدشات ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین گرینڈ ٹیچر الائن احسان صدیقی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا خدشات ہیں جو آج وہ احتجاج کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور سارے خدشات جو ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آپ آج اسکول کی نجکاری پرائیویٹائزیشن کے خلاف جو ہے احتجاج پہ موجود ہیں آج ناروال میں، تو آپ کو کیا خدشات ہیں اس حوالے سے کہ آپ احتجاج کی طرف گامزن ہیں اسکول بند کر کے؟ آج ہمارا سلام ٹیچر ڈے تھا۔ دنیا بھر میں آج ٹیچر کو سلام پیش کرنے کے لیے یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم اس سلام ٹیچر ڈے کو بلیک ٹیچر ڈے کے طور پر آبزرو کریں۔ اسکولوں کی نجکاری ہے، اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک مہم ہے۔ اس میں 700 سے زیادہ نقصان ایک کمیونٹی کا ہے۔ سامراجی قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کا نظام تعلیم تباہ کر اس ملک کو اس دانے پہ لے جائیں کہ جہاں پہ کوئی پڑھا لکھا نوجوان نہ رہے۔ اس کی مثال میں اس دیتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے انہوں نے اپنی ناقبت اندیشی کی بنا پر پرائمری اسکولوں میں ایک پریکٹس کی اور ہمارے میل اسکولوں کو فیمیل اسکولوں کے ساتھ مدغم کر دیا۔ دیکھنے کو ملے گا کہ جو اسکول جو ہیں وہ بھوت بنگلہ بن گئی ہیں اور وہاں پر جو بااثر لوگ ہیں انہوں نے ان بلڈنگز پر قبضے بھی کیے ہوئے ہیں، تو ہماری قیمتی پراپرٹی وہ ضائع ہو گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ اسکول بند ہو گئے۔ ایک بار پھر سے یہ حکومت وقت جو ہے اسی پریکٹس کو دہرانے جا رہی ہے، اور یہ جو این جی اوز کو اسکول دیے جا رہے ہیں یہ بھی پہلے بھی بند ہو چکے ہیں، اب بھی یہ سال دو سال کے بعد بند ہو جائیں گے اور یہ اسکول بھوت بنگلہ بن جائیں گے، اور میرے ملک کا جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے بچوں کے لیے پھر گاؤں میں اس کے قریب کوئی پرائمری اسکول نہیں رہے گا، اور پھر اس کا بچہ پرائمری سطح سے ہی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی بچہ پرائمری تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتا تو وہ پھر ہائی اور ہائر سیکنڈری تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ میرے استاد کو آج فکر ہے، میرا استاد لیڈر ہے، اس نے اپنے ویژن سے یہ دیکھ لیا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے ملک میں خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور جو ہمارے بچے ہیں ان پڑھ رہ جائیں گے، اور میرے ملک کا سفید پوش اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکے گا، اور وہ بچے پھر مزدوری کریں گے، پھر ان سامراجی قوتوں کے غلام بن کے رہیں گے۔ تو میرا ٹیچر قطعاً یہ نہیں ہونے دے گا۔ میرے ٹیچر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے ٹیچر کو فکر اپنے ملک کی ہے، اپنی قوم کی ہے، اپنے ملک کے نونہالوں کی ہے۔ میرے ٹیچر کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ جو عمارتیں ہیں وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہیں، جب یہ این جی اوز کے حوالے کر دے گا تو این جی اوز اس کی پیش قدمی کیوں نہیں کرتی؟ این جی اوز جو ہیں وہ اس لیے ان اسکولوں کو بہتر نہیں چلا سکتے کہ انہوں نے میٹرک پاس، ایف اے پاس بچوں اور بچیوں کو وہاں پہ ٹیچر رکھنا ہے، جبکہ
सिलेबस जो है वो बहुत मुश्किल है, उसको पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की ज़रूरत है, जो कि जो क्वालिफिकेशन मेरे जो गवर्नमेंट के उस्ताद हैं उनके पास है। तो वो थोड़ी क्वालिफिकेशन के जो बेटे और बेटियां बतौर टीचर रखेंगे, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो स्कूल फिर बच्चे जो हैं वो पीछे हट जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो सकेगी। बिल आखिर वो बच्चे स्कूल को छोड़ देंगे, तालीम को छोड़ देंगे। मुश्किल सिलेबस का मुकाबला करना, सामना करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा, और जब बच्चे स्कूल छोड़ देंगे तो वो स्कूल बंद हो जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया था कि अगर असातिज़ा एहतजाज की तरफ जाते हैं तो हम जो है इनको नौकरियों से निकाल देंगे। तो इसके मतलब आप क्या कहते हैं? आप इस तरह को मोल लेना चाहते हैं? मैं ये समझता हूं, हम किसी हुकूमत के मुलाजम नहीं हैं। जो उसातिज़ा हैं या दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं, हम स्टेट के मुलाजम होते हैं। और आईने पाकिस्तान में किसी को नौकरी से बर्खास्त करना इतना आसान नहीं है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं होते जिसकी बिना पर उसको, ठोस सबूत की बिना पर उसको नौकरी से फारिग किया जा सकता है। हम तो पढ़ाना चाहते हैं, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो इस मुल्क के नौनहालों को संवारना चाहते हैं। हमारे हाथों से कागज और कलम छीना जा रहा है। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि एक तरफ तो हुकूमत हमें काम करने से, जो हमारी प्राइम ड्यूटी है वो करने से रोक रही है, तो दूसरी तरफ कैसे ये फैसला किया जा सकता है कि इन टीचर्स को स्कूलों से फारिग कर दिया जाए। अगर कोई ऐसे अज़ाइम हुकूमत रखती है तो हम इंशाअल्लाह उसका सामना करेंगे और अपने टीचर्स को सपोर्ट करेंगे। आपने जो है ये रैली निकाली, खत्म हो गई। पाकिस्तान में जो है 8-8 दिन भी एहतजाज चलता है, फिर जाके बड़ी मुश्किल से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उस पर भी अमल नहीं होता। तो क्या आप समझते हैं कि 1-2 दिन की रैली निकाल के बस करके आप अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा सकेंगे? मैं ये समझता हूँ, हमारे ये मुतालबात जब हमने 23 में धरना दिया था, तो बाजी मरियम साहिबा और मलक मोहम्मद अहमद साहब ने दोनों ने हमारे साथ, लीडरान के साथ वादा करके उनको धरना ख़त्म करने के लिए कहा था। तो अब वो दोनों बरसरे इक़्तिदार हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो बाजी मरियम साहबा हैं, जो हमारी वज़ीर आला हैं, वो एक बहुत ही टैलेंटेड खातून हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमने उन तक आवाज़ पहुँचाई है, उनको सिर्फ तवज्जो दिलाई है। हम 100% इस बात पे यकीन रखते हैं कि सिर्फ इतने सी तवज्जो दिलाने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रीन टीचर अलायंस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से कि क्या आज वो जो प्रोटेस्ट किया है, क्या असातिज़ा जो है वो स्कूल बंद करके यहाँ पे आए हैं या स्कूल चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से जारी है। आज ज़िला नारोवाल समेत पंजाब भर के असातिज़ा ने अपने स्कूलों को खैरबाद कह के इस ज़िली हेडक्वार्टर पे पहुंचे हैं। कुछ लोग अपने स्कूलों के अंदर हाज़िरी लगा के आए हैं और कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज वैसे भी हफ्ते का दिन था, स्कूलों में बच्चे हफ्ते वाले दिन नहीं आते, बच्चों को छुट्टी होती है। इसलिए पूरे ज़िले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रैली निकाली है हमने। और इस रैली के ज़रिए हमने हुकूमत पंजाब को ये पैगाम दिया है कि आज अगर असातिज़ा निकले हैं तो कल असातिज़ा के साथ तलबा, और फिर नेक्स्ट डे तलबा के साथ उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाएगी। अगर आपने हमारे मुतालबात इस तरह तस्लीम ना किए तो सिविल सोसाइटी के लोग, वकला बरादरी जो आज भी हमारे साथ इजहार यकजहती करने के लिए तैयार है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारवाल ने आज अपनी अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया है और मुकम्मल हड़ताल का उन्होंने भी ऐलान किया है। और हमारे एक इशारे पे हमें ताजर बरादरी ने कहा है कि आप हमें बताएं, हमें हुक्म करें, हम तमाम दुकानें और पूरे बाजार बंद करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है इस एहतजाज के ज़रिए से आज हमने अवामुन नास तक भी पहुँचाया है। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हुकूमत पंजाब इसी
पुरअमन एहतजाज के जरिए से ही हमारे मुतालबात मान लें। अदरवाइज हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, सारी सड़कों को हम बंद कर सकते हैं। हमारे पास इस कदर लश्कर मौजूद हैं कि कोई भी सियासी जमात अपनी इतनी तादाद इकट्ठी नहीं कर सकती जितना कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा कराम लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आप सड़कें बंद करने की बात कर रहे हैं, हुकूमत आपको जो है वो नौकरियों से निकालने की धमकी दे रही है। देखें, रिस्क, मौत और इज्जत ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, किसी हुक्मरान के इख्तियार में नहीं है। अगर मेरे और मेरे उस्ताद के नसीब में रिस्क लिखा हुआ है तो ये हमारे मुंह से भी नहीं निकाल सकते। और हमारे बच्चों का रिस्क, इस कम्युनिटी के बच्चों का रिस्क अल्लाह ताला ने देना है और वो दे के रहेंगे। हुकूमत लाख साजिशें कर ले, डरा रहे लोगों को, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे, आखिर दम तक मुकाबला करेंगे और इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। हमारी लड़ाई तो किसी से है नहीं, हमारा मुतालबा भी कोई गलत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप ऐवानों से बाहर निकल जाएं और हमें जगह दे दें। हम ये नहीं चाहते कि आप वज़ीर आज़म ना बने, हमें वज़ीर आज़म बना दें। हम ये भी नहीं हमारा मुतालबा कि आप इलेक्शन दोबारा कराएं या ना करवाएं। हम ये भी बात नहीं करते कि फॉर्म 45 क्या हर 47 है, क्या है। हम तो ये बात भी नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि अवाम का ये हक है और हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की आइन के मुताबिक ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री और मायारी तालीम देने की पाबंद है। हुकूमत इस आइन की इस शिक से रूगर्दानी कर रही है। आप पूछेंगे क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि ये तालीमी इदारों को बेचकर, जो पहले तालीमी इदारे सरकार चला रही है, ये बेचकर ये आम लोगों के हवाले कर रहे हैं, एनजीओज के हवाले कर रहे हैं। और एनजीओज को फी स्टूडेंट ये फिलहाल जो है वो 600 650 रुपया दे के ये समझते हैं कि वो स्कूल चल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में ये जहाँ पे ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए निचकारी की जा रही है, एनजीओज के हवाले किए जा रहे हैं, वहाँ पे अक्सर स्कूलों की तादाद है 50-50। गाँव में बच्चे पहले की कम्युनिटी कम है, लोग कम है, घर कम है। अब मुझे ये बताएं कि 50 बच्चों वाला एक स्कूल है, उनको अगर फी बच्चा 600 रुपया मिलता है, 30,000 रुपया महीने का स्कूल को के मालिक को मिलेगा। वो 5 टीचर्स रखेगा, 30,000 रुपये में 5 टीचर्स रखेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। कितनी फीस एक बच्चे को, एक टीचर को तनख्वाह कितनी मिलेगी? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया महीने का लेकर कौन सा टीचर है जो मयारी तालीम दे सकते हैं? तो ये इन्होंने तालीम नहीं देनी, इन्होंने ये कारोबार का जरिया बनाया है और हम इस कारोबार को रोकना चाहते हैं। हमारे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, जहाँ आपने एक उस्ताद को मुकर्रर किया है, जिसने MA किया है, M.Ed किया है और तजर्बा हासिल किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल किया है, ट्रेनिंग की है, उसे इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि हमने अपने स्कूल के बच्चों को नजरिया पाकिस्तान से, नजरिया इस्लाम से रूशनास कैसे करवाना है। ये समझते हैं कि जोन सी मर्जी एनजीओ के हवाले करके हमारे स्कूल के बच्चों को नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान से दूर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुस्तकबिल में जो है आप मुश्किल धरने की जानब गामजन हो सकते हैं स्कूल की तालाबंदी करके? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हम ज़िला नारवाल की सतह पे एहतजाज कर रहे हैं और हम पाबंद होते हैं अपने मरकज़ी जो नज़म है उसकी। मरकज़ी नज़म ने ये एहतजाज को भी इसी तरह से जारी रखने और दीगर एक्टिविटीज़ जो स्कूल की गैर तदरीसी एक्टिविटीज़ हैं उनका बाइकाट करने का कहा है। जिस तरह से जो एलामिया सूबाई नज़म यानी कि हमारी मरकज़ी क़यादत जो है वो फैसला करेगी, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी ये हमारे साथ मौजूद थे ग्रीन्स टीचर अलायंस के नारवाल के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और तहसील शकरनगर के नुमाइंदे और जफरवाल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम स्कूल नजकारी के बिल्कुल खिलाफ हैं, एनजीओज को स्कूल नहीं देने चाहिए, इससे जो है तुलाबा के भी नुकसान होगा, मुआशरे का भी नुकसान होगा। तो हम जो है इस चीज़ के खिलाफ हैं और आखिरी हद तक जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।